میرا غمخوار مسیح، میرا مددگار دیکھ کرتا ہے گناہگار کو بھی پیار مسیح، میرا غمخوار مسیح، میرا مددگار مسیح۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ عزیزوں، خداوند یسوع جو ہمارا غمخوار، ہمارا مددگار ہے، اس وقت خداوند یسوع کی حضوری یہاں پر مانگتے ہیں، کثرت کی حضوری۔ آج آپ کو اس میریکل ویڈنسڈے مڈ ویک پریئر فیلوشپ میں آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور خداوند کی حضوری مانگتے ہیں، کثرت کی حضوری اس جگہ پر مانگتے ہیں، اس ماحول کو، اس جگہ کو خداوند یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں خداوند ہم چھپاتے ہیں، تیرے زندہ لہو چھڑکتے ہیں، تیرے لہو میں دھوتے نہاتے، خداوند یسوع ہر چیز کو چھپاتے تیرے زندہ لہو میں، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اور پاک روح کی آگ مانگتے ہیں، پاک روح کی آگ کا مسا، پاک روح کی آگ کا مسا یہاں پر مانگتے ہیں، جو خداوند ابلیسی قوتوں کو جلا کر بھسم کر دے، جو خداوند یہاں پر خداوند تیری حضوری جو یہاں پر ہے، خداوند یسوع وہ لوگوں کو بھی چھوئے، دنیا کے کس کونے کونے میں جہاں پر بھی خداوند آج اس وقت لوگ اس عبادت میں شریک ہوں، خداوند لوگوں کو چھوئے، لوگوں کے بندھن ٹوٹے، خداوند یسوع لوگوں کے جوئے ٹوٹے، خداوند یسوع لوگوں کی بیماریاں بھاگیں، پریشانیاں دور ہوں، تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور یہاں پر کثرت کا مسا مانگتے ہیں، ساز و آوازوں پر مسا مانگتے ہیں، خداوند وائی فائی سگنلز اور خداوند سیلولر ڈیٹا پہ خداوند یسوع کے نام سے تیرا مسا، تیری آگ کا مسا مانگتے ہیں کہ یہ سگنلز جہاں جہاں خداوند کسی شہر میں جاتے ہیں، کسی کے فون پر، کسی کی ٹیبلٹ پر، کسی کے ٹی وی پہ، ٹیلی ویژن پر، کسی کے کمپیوٹر پر، خداوند کسی کے کانوں میں، کسی کی آنکھوں میں، خداوند یسوع تو چھو سب کو چھو اور لوگوں کو برکت دے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہوئے تیرے یسوع نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین، ہاللویا، ہاللویا، پریز گاڈ۔ عزیزو، خداوند یسوع ہمارا غمخوار ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسایہ 53 باب میں، اس نے ہمارے سارے غم برداشت کیے، ہماری مشقتیں اس نے اٹھا لی اور ہمارے غم اس نے برداشت کیے، اور وہی ہمارا غمخوار ہے۔ اگر آپ کو کوئی آج غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تو آج خداوند یسوع آپ کے غم کو دور کرے، آپ کی پریشانی کو دور کرے، آپ کی جو بھی کوئی سمسیا ہے اس وقت وہ خداوند دور کرے۔ ہاللویا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر اس بات کا اکنالج کرتے ہیں، میرا غمخوار مسیح، میرا مددگار مسیح، میرا غمخوار مسیح، میرا مددگار دیکھ کرتا ہے گناہگار کو بھی پیار مسیح، میرا غمخوار مسیح، میرا مددگار مسیح۔ کنفیس کیجئے، اکنالج کیجئے، اعلان کیجئے، اپنے ایمان کا اظہار کریں، یسوع کو پتہ لگے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا غمخوار، میرا غمخوار خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہم گناہ، ہر کوئی، خداوند کے کلام میں لکھا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے گناہ نہیں کیا سوائے یسوع مسیح کے، اور وہ ان کی مدد کرنے کے لیے، میری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہاللویا، اس کا پاک روح ہمارا مددگار ہے۔ میرا غمخوار مسیح، میرا مددگار مسیح، دیکھ کرتا ہے گناہگار کو بھی پیار مسیح، میرا غمخوار مسیح، میرا مددگار
قدموں پہ جو آتا ہے وہ بچ جاتا ہے. یس اس کے قدموں پہ جو آتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ہر بشر ڈھونڈے مسیحا سے شفا پاتا ہے. ہر بشر ڈھونڈے مقدس سے شفا پاتا ہے. مخلصی ہوتی ہے کہہ دے جسے ایک بار مسیح میرا غمخوار مسیح میرا مددگار مسیح دیکھ کرتا ہے گنہگار سے بھی پیار مسیح میرا غمخوار مسیح میرا مددگار مسیح. ہاللویا. تو بھی آ جائے گنہگار بلاتا ہے تجھے. سب کو بلا رہا ہے یسوع. تو بھی آ جائے گنہگار بلاتا ہے مسیح. زخم جو تیرے لیے کھائے دکھاتا ہے تجھے. زخم جو تیرے لیے کھائے دکھاتا ہے تجھے. مانگ اس سے کبھی کرتا نہیں انکار مسیح میرا غمخوار مسیح میرا مددگار مسیح. دیکھ کرتا ہے گنہگار سے بھی پیار مسیح میرا غمخوار مسیح میرا مددگار مسیح. ہاللویا. پریز گاڈ. عزیزو خداوند یسوع ہمارا مددگار ہمارا بچانے والا چھڑانے والا ہاللویا ہمارا غمخوار اور وہ سب کو بلاتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ. آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے اور اس نے ہم سب کو زمین پر محکوم ہونے کے لیے زمین پر بادشاہی کرنے کے لیے اس نے ہمیں اتھارٹی دی تھی. آدم کو اتھارٹی دی تھی مگر آدم نے ایک ہی گناہ کیا اور وہ اتھارٹی کھو بیٹھا. ابلیس نے وہ اتھارٹی چرا لی. مگر یسوع مسیح نے آ کر ہمارا وہ غم جو تھا جو ہمارا نقصان ہو چکا تھا اس میں جو ہمارا غم ہے کہ ہم کیسے خدا کے ساتھ ملاقات کریں اس کے ساتھ کیسے ریکنسائل ہو. یسوع مسیح نے اس کا انتظام کیا اور اس نے زخم کھائے. اس نے موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کی اور اس وقت یسوع مسیح آپ کو اپنے زخم دکھا رہا ہے. اس کے ہاتھوں پاؤں میں زخم اس کی پسلی میں زخم اس کے سر پر زخم اس کا پورا بدن جو گھائل کیا گیا کوڑوں کے زخم وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ اس کے پاس آ جاؤ اور اس سے نجات مانگو اور اپنی سالویشن اپنا ادھار مکتی مکشا مانگو. وہ کبھی انکار نہیں کرے گا. آمین. کبھی انکار نہیں کرے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو ہمارا اصل
वतन है, हमारा जो घर है आसमान पर, वो हमें वहां पर सेटल कर सके, नए यरूशलेम में सेटल कर सके। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। हमारा असल वतन, ये जमीन पर जब हम रहते हैं तो ये हमारा टेम्परेरी घर है, टेम्परेरी। हम बेशक हम जहाँ से भी किसी मुल्क से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से और किसी मुल्क से हैं, जहाँ पर भी हम रहते हैं, अगर हम यहाँ पर जैसे हम अमेरिका में सेटल रहे हैं और हम यूएस के अमेरिकन सिटीजन भी हैं, पर यहाँ ये भी टेम्परेरी सिटीजनशिप है। हमारी सिटीजनशिप आसमान की है, हमारी सिटीजनशिप खुदावन के आसमान की है, वो हमारा वतन है। हम जमीन पर टेम्परेरी हमारी जिंदगी है, जितनी भी, चाहे वो एक दिन की हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, 80 साल की, 90, 100 साल की, वो टेम्परेरी जिंदगी ही है। इटर्नल लाइफ, अपनी जिंदगी, वो हमारी उस वतन में है, उस मुल्क में है। आसमानी घर जो हमारा है, वही हमारी परमानेंट जगह है, खुदा के उस नए यरूशलेम में कि हम सिटीजन हैं। अगर नहीं है तो हम उसके पास आ जाएं, वो सबको बुला रहा है, सबको बुला रहा है। हालेलुया। दुनिया के काम दुनिया पे रह जाएंगे, दुनिया दे कम सारे दुनिया ते रहन
डोरे चंदियों से हर वेले यीशु हाथ डोरे जिथे किसे शैनू लगदा नी चोरे ये तेरा देश नहीं देश तेरा हो सारी तेरे देश दी बेअब खुदाई ओथे यीशु बादशाह दी पाक बादशाही ओथे यीशु बादशाह दी पाक बादशाही सारी तेरे देश दी बेअब खुदाई ओथे यीशु बादशाह दी पाक बादशाही ओथे यीशु बादशाह दी पाक बादशाही ओथे दुख दर्द ना कोई मुसीबतां दा शोर हालेलुया ओथे दुख दर्द ना मुसीबतां दा शोर जिथे किसे शैन लगदा नी चोर ये तेरा देश नहीं देश तेरा हो नी चोरी तेरा देश नहीं देश तेरा हो रे ओ हो दुआ कीजिए सब मिलकर दुआ करते हैं हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया 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 कुरान के कलाम में से चंद एक बातें भी सीखने के लिए अपने ईमान के लिए भी हम दुआ करते हैं पास्टर सारा के साथ मिलकर प्रेज गॉड हालेलुया आसमानी बाप हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद यीशु जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है खुदावंद हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं तुझे सिजदा करते हैं तुझे ही मुबारक कहते हैं खुदावंद क्योंकि तू मुबारक है तेरे सिवा और कोई नहीं खुदावंद जिसको हम मुबारक कह सकें जिसकी हम सताइश कर सकें जिसकी हम परस्तिश कर सकें सिवाय तेरे और कोई नहीं है खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सब मेहरबानियों के लिए तेरे फजल के लिए तेरे प्यार के लिए खुदावंद यीशु आज इस वक्त आए खुदावंद हमें अपनी बादशाही में दाखिल होने के लिए आए खुदावंद तू हमें तैयार कराए खुदा और आए खुदावंद यीशु जितने बहन भाई इस वक्त शामिल हैं खुदावंद इस वक्त आए खुदावंद हमारे साथ इस इबादत में इस आए खुदावंद सताइश में हमारे साथ शामिल है खुदावंद इंटरनेट के जरिए और आए खुदावंद यूट्यूब के जरिए किसी भी आए खुदावंद प्लेटफॉर्म पर वो देख रहे हैं खुदावंद सुन रहे हैं खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद कि तू एक एक को छू हमें भी आए खुदावंद यीशु तू पूरे तौर पर अपने मस्सा में हमें खुदावंद भर दे और आए खुदावंद यीशु हमें फजल दे
कि आए खुदाम तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरे आए खुदाम बादशाही के कलाम को सुनने के लिए हम तैयार हो सके खुदाम, ताकि कोई भी रह ना जाए। हम दुआ करते हैं खुदाम यीशु, हमारे वो बहन भाई, वो अजीज अगर अभी तक आए खुदाम तुझसे दूर है, हम दुआ करते हैं कि खुदाम एक एक जान, एक एक रूह बच जाए खुदाम, और कोई भी तुझसे दूर ना रहे, कोई भी इस बादशाही से दूर ना रहे खुदाम यीशु, क्योंकि तूने कहा है कि तेरी बादशाही आ चुकी है, इस जमीन पर है खुदाम, तेरी बादशाही तूने कायम की है, और हम सबको ये फजल दे कि हम तेरी बादशाही में आए खुदाम दाखिल हो सके, ताकि खुदाम जब तू हमें फिर से लेने के लिए आए तो खुदाम हम उस बादशाही में तेरे साथ जाने वाले हों, कोई भी पीछे ना रहे खुदाम। तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, अपने कलाम से हमसे बातचीत कर, और आए खुदाम अपने बंदा के जरिए से खुदाम यीशु तू बोल और कलाम कर, वो सुनाए और हम सुने। आए खुदाम हमारे दिलों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को खुदाम सिर्फ और सिर्फ अपने कलाम की तरफ और अपने पाक रूह के मसा की तरफ आए खुदाम तू लगा ले। खुदाम हम दुआ करते कि तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, तेरा पाक रूह हमारी मदद करे खुदाम। इस वक्त सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे पाक रूह को, तेरे मसा को देते हुए खुदाम यीशु मसीह के नाम में ये दुआ हम तुझसे मांगते हैं और तुझी से पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आपको सबको हम वेलकम करते हैं इस मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग को, और आज मैं मान रखता हूँ कि खुदा उनसे आप बरकत पाएँ और पाई होगी। आपने जो खुदा यीशु को एक्नॉलेज किया है कि वो हमारा गमखार है, वही हमारा मददगार है, उसने अपना पाक रूह भेजा है जो हमारी मदद करे। आमीन। उसने अपने रूह को भेजा, उसने कहा कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँ। प्रेज गॉड। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस शाम के लिए कि जितने लोग आप हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी जैसे हम गीत गा रहे थे कि ए तेरा देश नहीं, देश तेरा कोई और है, देश तेरा कोई और है, कोई और देश है हमारा। ये देश हमारा जिसमें हम रहते हैं, यानी ज़मीन पर, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा मुल्क नहीं है, ये हमारा वतन नहीं है। और जहाँ पर हमने रहना है एक्चुअल में, ये हमारा टेम्परेरी घर है। आई मीन ये हमारा जितनी भी हमारी एज होती है, जितनी भी हमारे दिन जिंदगी के खुदा ने ठहराए हैं और हम इस ज़मीन पर रहते हैं, ये टेम्परेरी हमारा घर है। मगर हम जो ओरिजिनली हमारी जो रूह है, उसका जो घर है, खुदा की रूह जो है, खुदा की दी हुई आत्मा जो है, उसका जो घर है वो आसमान पर है। आमीन। वो और उसके लिए खुदा चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपना खजाना, अपना माल हम आसमान पर जमा करें, क्योंकि यहाँ पर हम अपने, अगर हम बहुत से लोग यहाँ पर अपना जो टेम्परेरी घर है, ज़मीन पर जो हमारी टेम्परेरी ज़िंदगी है, इसमें अपना माल जमा करते और तरह तरह का माल जमा करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ भी बनाते हैं, बैंकों में भी पैसे हैं, सोना चांदी जेवरात बनाते हैं, और कीमती चीज़ें बनाते हैं कि वो सबका ख़जाना होता है। आई मीन, पर एक चीज़ हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें आज सीखते हैं कि क्या हमें जो आसमान पर ख़जाना जमा करना है, वो उसकी क्या वैल्यू क्या है, हमें उसकी वैल्यू क्या है, और उसका तरीका क्या है, और क्यों हमें आसमान पर, हम कहते हैं कि आसमान पर ख़जाना जमा करना है, आसमान पर हम बहुत से लोग इसको डिफरेंट वे में भी लेते हैं, ये सोचकर कि ऐसे जब कहा जाता है कि अपना माल, अपना खजाना आसमान पर जमा करो, तो उसका मतलब बहुत से लोग ऐसा भी लेते हैं कि शायद पास्टर लोग या एवेंजलिस्ट या प्रीचर्स जो ये कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अपना चंदा दो, अपनी ऑफरिंग्स, दायकियाँ, ये सब आप जब खुदा को देते हो तो आप अपना खजाना आसमान पर जमा कर रहे हो। तो अजीजों, ऐसा नहीं है, ये एक तरीका है, इसके और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीकों में से ये भी एक तरीका है कि हम जब खुदा उनको फाइनेंसेस भी देते हैं अपने, तो वो भी हम आसमान पर खजाना अपना जमा कर रहे हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही तरीका है,
और बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपना जो खजाना है आसमान पर जमा करते हैं, जिस तरीके से यीशु ने हमें बताया है। अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के उसके 6 बाब में चलते हैं, जो पहाड़ी वाज है, सरमन ऑन द माउंट, 6 बाब, और उसकी अगर 19वीं आयत से पढ़े हम, 19, 20, 21 आयत पढ़ें, तो यहां ऐसा लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। ठीक है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। तो इस स्टेटमेंट से बहुत से लोग समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। खजाना, ये सोना चांदी वगैरह जो कुछ हम जेवरात भी बनाते हैं, जो भी है वो बनाते हैं, तो बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस माल की, मटेरियल की जिक्र वो कह रहे हैं कि अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा भी खाता है, जंग लग जाता है चीजों को, और जहां चोर भी नकब लगाते और चुराते हैं, जहां पर हमारी चीजें चोरी भी हो जाती हैं, हमारी हमारा सोना चांदी पैसे चोरी हो जाते हैं, और गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, और तरह तरह की चीजें लोग चुरा लेते हैं, चोर चुरा लेते हैं। और 20वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो अजीजों, जहां इंसान का, आदमी का माल होता है, वहीं उसका दिल भी लगा रहता है। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में किसी ने पैसे लगाए हुए हैं, वहां पर उनका दिल लगा रहेगा। जहां पर भी माल खजाने जमा हुए हैं, आदमी सोचता रहता है मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने हो गए, कितने और बनाने हैं, क्या कर सकते हैं इन पैसों का, क्या बिजनेस को कैसे और बढ़ा सकते हैं। बिजनेसमैन, ऐसे जो पैसे को प्यार करने वाले, माल को प्यार करने वाले लोग हैं, वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं और अपना माल जमीन पर जमा करते हैं, और ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पर कीड़ा खा जाएगा, यहाँ पर चोर चोरी कर लेगा, और या ये माल जब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100 साल, जितनी भी जिंदगी है, उसके बाद वो माल कोई और खाएगा, उसके बाद कोई और खाएगा, चोरी भी होगी, वो सब कुछ होगा, मगर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अपना माल आसमान पर जमा करो। एक खजाना, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी बातें सीखते हैं कि वो कौन सी डिफरेंट खजाना माल है जो हम आसमान पर जमा कर सकते हैं। बहुत से बातें हैं, मगर चंद एक बातों को हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से वो माल जो है हमारा आसमान पर जमा होता है। बेशक बहुत से लोग नेकियां करते हैं, बहुत से लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, उनके माइंड में वो भी है कि हम अपना माल आसमान पर जमा कर रहे हैं। बहुत से लोग चैरिटीज़ में पैसा देते हैं, बहुत सा चंदा देते हैं, बहुत सी लोगों को, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, और बहुत सारे और नेकी के काम है, तो वो समझते हैं कि हम आसमान पर माल जमा कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक तरीका है, अपना माल आसमान पर हम जमा कर रहे हैं, कि वो नेकियां आसमान में हमारी गिनी जा रही हैं, वो गुड डीड्स गिनी जा रही हैं। पर अगर हम सेव्ड नहीं है, अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमें साल्वेशन नहीं मिली, हमें नजात नहीं पाई यीशु मसीह के मार खाने के वसीले से, उसकी जान, उसकी खून बहाने के वसीले से अगर हमने निजात नहीं पाई, तो हम जितनी भी वो नेकियां कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, वो आसमान पर माल जमा नहीं हो रहा। हमें ये सारे काम निजात पाने के बाद जो अगर हम करते हैं ये काम, तो ये हमारी गुड डीड्स में और अच्छे अमाल में शामिल जरूर होते हैं, मगर ये रासबाजी के अमल नहीं है। रासबाजी के अमल यही है
कि खुदा की मर्जी पूरी करें, उसके हुक्मों पर चलें, उसके पाकीज़गी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और ताकि वो हमें उन अब्दी राहों पर ले चले जहाँ पर हमें जाना है, जिस वतन में, जिस आसमान जो हमारा वतन है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर अपना माल जमा करें और उसी तौर पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के हुक्मों के मुताबिक। आमीन। एक मैं मिसाल देता हूँ, मूसा की मिसाल इब्रानियों के खत में हम पढ़ते हैं 11 बाब। मूसा की मिसाल आपके सामने में रखता हूं कि किस तरीके से मूसा ने मिस्र के खजानों को रिजेक्ट किया और उसने यही अपने लिए चुना कि वो अपना माल, वो खजाने जो दुनियावी खजाने हैं, बादशाह जो दुनियावी बादशाही या बादशाही महलों के खजाने हैं, उसकी जिंदगी है, और जैसा वो पला बड़ा है, वो उनको रिजेक्ट करके उसने आसमानी मकाम में अपना खजाना जमा करना शुरू किया है, खुदा की बुलाहट को पहचान कर और उस पर अमल करने के साथ। तो 11 बाब, इब्रानियों 11 बाब और उसकी अगर हम 24 आयत से पढ़ें तो यहां पे लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर, ठीक है, ईमान की बात हो रही है, क्योंकि अगर हम 11 बाब की 6 आयत में पढ़ें तो लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा को अगर हमारे अंदर ईमान कोई नहीं है तो उसको हम पसंद नहीं आ सकते, उसको बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। तो हमें जो बदला मिलेगा एक्चुअल में वो खजाना है, जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे हमारे कामों के बदले, ईमान के बदले, नेकियों के बदले, रास्तबाजी के कामों के सबब से जैसी हम जिंदगी गुजारते हैं उसकी मर्जी के मुताबिक, उसका जो रिवॉर्ड है, उसके जो अवार्ड्स है, उसकी जो एप्रिसिएशन खुदा ने हमें देनी है, उसने हमें करनी है हमारे साथ, हमें जो गिफ्ट देना है उसने, एक तो हमेशा की जिंदगी का वो खजाना है, वो खजाना है अजीजों, ईमान रखने के साथ साथ। तो आगे चलिए हम 24 आयत में, जैसे हमने पढ़ा है अभी 11 बाब, हिब्रूज चैप्टर 11 उसकी 24 आयत में, ईमान से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। ईमान से ताकि वो खुदा को पसंद आए, कि वो फिरौन की बेटी जिसने उसको एक मौत से बचाया और उसको पाला, और उसने मूसा ने शहजादों की जैसी जिंदगी गुजारी, महल में वो बड़ा हुआ, उसने सब कुछ उनका सीखा मिस्रियों का, जो मिस्र उस वक्त एक बड़ी दौलतमंद कौम थी, बहुत दौलतमंद बादशाह थे, हुक्मरान थे, बड़े स्ट्रॉन्ग और कवि बादशाह थे, जोरावर बादशाह, जो चाहते थे वो करते थे। तो उस वक्त और उनके मिस्र के खजाने भी बेतहाशा और बेइंतहा कसरत के खजाने थे उनके पास, सोना चांदी हीरे जवाहरात उनके पास कसरत से था, उन बात फिरौन के पास और उसकी नस्लों के पास। तो मूसा ने ईमान से, कौन से ईमान से, आगे हम पढ़ते हैं, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। हालेलुया। मिस्र इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ, जमीन के जो खजाने हैं हम जमा करते हैं या उनको एंजॉय करते हैं, पैसा सोना चांदी पहन के हम शो ऑफ भी करते हैं, वो उसका लुत्फ उठाना या उसका शो ऑफ करना या उसको एंजॉय करना, खुदा इसमें बुराई नहीं चाहता, और बुराई इसमें कोई बुराई है नहीं मगर कि हम उसको एंजॉय ना करें, मगर शो ऑफ करना में जरूर बुराई है कि हमारे पास जो खजाने माल जो कुछ हमारा जमीन पर होता है उसको हम जब शो ऑफ करते हैं उसमें बुराई जरूर है। पर मूसा ने ये सब कुछ जो है ना उसको रिजेक्ट किया, और उसने जो लिखा है कि उसने उसकी लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ
उसने अपने आप को खुदा के लोगों के साथ उस जो बदसलूकी हो रही थी उस बदसलूकी में अपने आप को भी शामिल कर लिया, उनका वो हिस्सा बन गया। खजानों को छोड़ के बादशाही, फिरौन के बादशाही महल को छोड़कर वो जो अडॉप्शन जो उसकी हो चुकी हुई थी, बादशाह का वो बादशाह की बेटी का बेटा वो कहलाता था, शहजादा कहलाता था, उस अडॉप्शन को उसने, शाही अडॉप्शन को भी रिजेक्ट किया है और उसने अपने आप को जो खुदा के लोगों के साथ बदसलूकी होती थी उसमें शामिल होना ज्यादा पसंद किया। यहां पर लिखा हुआ है 26 आयत में, 25 आयत में, और आगे 26 आयत में ऐसा लिखा है, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजो, मसीह की खातर अगर मैं और आप लान तान उठाते हैं ना, तो वो भी हमारा खजाना है जो हम आसमान पर जमा कर रहे हैं। हालेलुया, वो जमा हो जाता है। और वो क्या है, आसमान पर खजाने जो है, बेशक जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम खुदा के घर में ऑफरिंग देंगे, अपनी दही की देंगे, अपने चंदा देंगे, कुछ भी गरीबों की मदद करें, वो एक हम खजाना अपना आसमान पर जमा करें, वो एक हद तक ठीक है बात, मगर ज्यादातर ये है कि वो जो कुछ भी हम जमीन पर खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं, परसिक्यूट भी होते हैं, लान तान भी होते हैं, और बुराइयां भी उठाते हैं यीशु के नाम की खातर। यीशु के नाम की खातर जो है वो हमें बहुत सी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। वो सब कुछ खजाना है, वो सब कुछ खजाना है जो हम आसमान पर जमा कर रहे हैं। और मूसा ने वो जमीन पर के खजाने को और बड़ी दौलत को नाचीज जाना, और उसने अपने आप को लान तान उठाना, यहां पे लिखा है मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। हालेलुया, ये जो अजर है ना, यही खजाना है मेरा और आपका, जो हम आसमान पर जमा करते हैं अपने कामों से, अपने ईमान से, अपने खुदा की मर्जी पर जिंदगी गुजारने का जो अजर मुझे और आपको मिलना बाकी है, वो उसको आसमान पर एक्चुअली खजाना कहा जाता है, जो यीशु मसीह ने मत्ती 6 बाब में कहा है कि अपना माल आसमान पर जमा करो, जहां पर ना कोई कीड़ा चुराता है, ना उसको कोई जंग लगता है, ना उसको कोई चोर चुरा सकता है। वो जो आपके रिवॉर्ड और अवार्ड और आपको जो गिफ्ट्स जमीन पर मिलते हैं, जो कुछ आप बनाते, हासिल करते हैं और जमा करते हैं, उसको चोर चुरा सकता है, उसको जंग लग सकता है, उसको कीड़ा खा सकता है। मगर आसमान पर जो खजाना, आपके जो रिवॉर्ड, आपका जो अजर जो है, जो वहां पर जमा हो रहा है, वो खजाना है आपका, उसको कोई चोर नहीं चुरा सकता, उसको कोई कीड़ा नहीं खा सकता, उसको जंग नहीं लग सकता। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, खुदा मसीह के लान तान उठाने को उसने खुदा ने, मूसा ने इस बात का फैसला किया है, उसको चूज किया कि मैं मसीह की खातर लान तान उठाऊं। आप कहोगे कि मूसा के जो मसीह जो है वो मूसा का वक्त में तो मसीह नहीं था। यहाँ पे इब्रानियों के खत में मसीह का क्यों जिक्र है कि मूसा ने मसीह की खातर। अजीजो, पुराने अहदनामे का यहोवा खुदा, वो जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, वही नए अहदनामे का यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया, जो आसमान से जमीन पर आया, कलमा खुदा, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा और कंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो खुदा जिसने जिस्म इख्तियार किया, वो रूह, वो कलमा खुदा जिसने जिस्म इख्तियार किया, वो यीशु मसीह पुराने अहदनामे का यहोवा खुदा ही है। अजीजों, यहोवा खुदा है जिसकी खातिर मूसा ने लान तान उठाना जो है उसको बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी कि वो अपने लोगों को के खातिर
दुख भी उठाए और अपने लोगों की खातिर लान तान भी उठाए और अपने लोगों के लिए शिफात भी करे। अजीजों, अगर मैं और आप अगर शिफात भी करते हैं ना, किसी के लिए इंटरसीड करते हैं, किसी के लिए बोझ रख के दुख के साथ दुआ करते हैं, तो उसमें भी आपका एक अजर है, वो आप अपना खजाना आसमान पर जमा कर रहे हैं। आपको पता है मूसा जब बनी इस्राइल को लेकर निकला, उसके बाद कितनी दफा बनी इस्राइल बुड़बुड़ाते, मूसा की कंप्लेन करते, खुदा की कंप्लेन करते, हारून की कंप्लेन करते, और खुदा को बड़ा गुस्सा भी आता। वो कहता मैं इनको भस्म कर दूंगा, इनको मैं जलाकर खत्म कर दूंगा, इनको गर्क कर दूंगा, मिटा दूंगा। मूसा अपने आप को हम्बल करता, लिखा है कि वो सबसे बड़ा मूसा जो है बड़ा ही फरोतन, बड़ा ही आजिज शख्स था जमीन पर, जो कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उसको कि इतना निम्र और इतना वो जमीन पर झुका हुआ, जो कि एक बादशाही महल को वो रिजेक्ट करके ठुकरा कर आ गया था। वो लोगों के लिए खुदा के आगे झुक जाया करता था कि खुदावन इन लोगों को तू माफ कर, इन लोगों को तू माफ कर, इनके लिए ऐसा कर, उनके लिए इनके लिए ऐसा कर। तो जब हम शिफात करते हैं, जब हम लोगों के लिए, किसी और के लिए दुख अपना दुख महसूस करके, या किसी के लिए हम गम करते हैं और किसी के लिए हम शिफात करते हैं, उसकी उस ज़िंदगी को संवारने के लिए, उसकी ज़िंदगी ठीक हो जाए, खुदा की हुजूरी में उनको माफ़ किया जाए, या जो भी हम शिफात करते हैं, वो भी मेरा और आपका रिवॉर्ड है जो आसमान पर जमा होता है एक खजाने के तौर पर। आमीन। और आगे लिखा है 27वीं आयत में, ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्सा का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मूसा को पता था कि मेरा साबित कदम रहना ही मेरा रिवॉर्ड है, मेरा अजर है, मेरा खजाना है जो आसमान पर खुदा के पास जमा हो रहा है। हालेलुया। उसका ये ईमान था कि बादशाह का गुस्सा जो है, कि बादशाह मिस्र जो फिरौन बादशाह है, उसका जो वो मूसा के खिलाफ उसका गुस्सा भड़का है कि वो बनी इस्राइल को निकाल कर यहाँ से ले गया है, जो कि मुफ्त काम किया करते थे, उनकी गुलामी किया करते थे, वो उनको ये मूसा निकाल कर ले गया है। और मूसा, बल्कि उससे पहले भी मूसा जब मिस्र में ही था, जो फिरौन के महल में ही वो बड़ा हो रहा था, तकरीबन 40 साल की उसकी उम्र थी, जब उसने देखा कि कोई बिसरी है जो कि बनी इस्राइल के किसी शख्स को, मूसा की कौम के किसी शख्स को मार रहा है या उससे ज्यादती कर रहा है, तो मूसा ने उस मिस्री को मारा और रेत में दबा दिया। मगर उसका पता लग गया, किसी ने देख लिया और बादशाह के पास भी वो खबर पहुंची, उसकी वजह से भी फिरौन जो है बादशाह गुस्से में आया और मूसा अपना घर वहां से छोड़कर भाग गया, और उसने सब कुछ, मिस्र के खजाने, दौलत, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, सब कुछ उसने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, ताकि वो जाए और अपने आप को, अजीजों, मिस्र जो है एक गुलामी की जगह को रिप्रेजेंट करता है, गुनाह की गुलामी को भी रिप्रेजेंट करता है। मिस्र, जब मिस्र का जिक्र आता है तो मूसा ने अपने आप को उससे अलग किया, दूर किया, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने कत्ल तो किया, मगर वो भी खुदा के लोगों पर ज्यादती होने की वजह से उसने एक शख्स की मदद की कि उसको उस तकलीफ से, उस परसिक्यूशन से वो बचा सके। तो उसने, मूसा ने अपना अजर आसमान पर जो है वो खजाना जमा किया। इसके साथ हम आगे भी अगर पढ़ते हैं इसको, तो लिखा है 27वीं आयत, ईमान ही से उसने बादशाह के गुस्सा का खौफ न करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फंसा करने
और खून छिड़कने पर अमल किया ताकि पहलौठों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ न लगाए। ईमान ही से वो बहरे कुलज़म से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क ज़मीन पर इस से, और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। अजीजों, मूसा का ये स्टेप कि मिस्र के खजानों को वो रिजेक्ट करे और मसीह की खातर लान तान उठाए, उसकी मर्जी पर चले, उसकी बुलाहट को एक्सेप्ट करे कि लोगों के लिए दुआ भी करे, लोगों को का रहनुमा बन जाए, लोगों को अच्छी बातें बताए, लोगों को खुदा के बारे में, खुदा के जो हुक्म है वो लोगों तक पहुंचाए। अजीजों, ये भी उसके लिए खजाने थे, आसमान में खजाने थे, इसके लिए बजाय कि वो मिस्र के खजानों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता। उसने बड़ी उसको लान तान मसीह की खातर लान तान उठाने को उसने बड़ी दौलत समझा, जो कि उसका खजाना जिसका जो अजर था वो आसमान पर जमा हो रहा था। तो अजीजों, हम इसी तौर पर जो अजर खुदा ने हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं बदन की हालत में रहकर, जो उसका जो अजर है वो खुदा हमें देता है और आसमान पर हमारे लिए ख़जाना जमा हम करते हैं और हमारे लिए ख़जाना जमा हो रहा है। इब्रानियों अगर 10 बाब की 32 आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है, लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खखेड़ उठाई, ठीक है, दुखों की बड़ी खखेड़ उठाई, कुछ तो यूं के लान तान और मुसीबतों के बायस तुम्हारा तमाशा बना, और कुछ यूं कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी। अजीजों, मूसा के दिनों में मूसा ने लिखा है, लेकिन उन पहले दिनों को याद करो कि तुमने मुनव्वर होने के बाद दुखों की बड़ी खेड़ उठाई। अजीजों, यहां पर मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं। ये तो खुदावंद यीशु मसीह हम हमारे लिए जो बिलीवर्स हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए, जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद का नूर आया और वो मुनव्वर हो गई उनकी ज़िंदगी, अंधेरा ज़िंदगी जो थी वो उनकी ज़िंदगी में नूर आ गया, वो मुनव्वर हो गई। मगर मूसा के साथ भी ऐसा हुआ, जब वो पहाड़ पर गया है और पहाड़ पर खुदा की हुजूरी में रहा, जहाँ पर उसको 10 हुक्म मिले, तो मूसा की भी चेहरे पर ऐसा नूर था, उसका चेहरा मुनव्वर हो गया, और उसके बाद भी उसने दुखों की ऐसी बड़ी खेड़ उठाई। और उससे पहले भी अगर हम जाते हैं तो हम जब मूसा भेड़ बकरियां चरा रहा था मदियान में, तो उसको खुदा झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में नजर आता है। उसी वक्त से खुदा उसकी जिंदगी में मुनव्वर हो गया था। उसने अपनी कॉलिंग मूसा की जिंदगी में रख दी थी, उसको अपनी वो टास्क और कमीशन दे दी थी। वही उसके लिए उसकी जिंदगी जो थी, क्योंकि उससे पहले उसकी जिंदगी अंधेरा हो चुकी थी जब वो मिस्र से भाग गया और भेड़ बकरियां चला रहा 40 साल तक, और उस वक्त मूसा की उम्र 80 साल की थी जब वो उसको झाड़ी में खुदा की हुजूरी उसने देखी, एक जलती झाड़ी में। तो वो भी उसके लिए एक नूरानी एनकाउंटर था जो उसकी जिंदगी में हुआ, और उसके बाद उसने बहुत से दुख उठाए। और कुछ लिखा है, कुछ तो यूं कि लानतान और मुसीबतों के बायस तुम्हारा तमाशा बना। मूसा ने अपना उसका तमाशा भी बना फिरौन के महल में, फिरौन के पास जब वो जाया करता था, और फिरौन उसकी कोई बात नहीं मानता था। जो मूसा कहता था कि मेरे लोग के खुदा ने कहा है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, तो उसका तमाशा बनाया जाता था, उसका तमाशा बनाया जाता था। और दूसरा उसके साथ लिखा है उनका तमाशा बना,
और कुछ यूं कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी होती थी। और मूसा जो था उनके साथ शरीक हो गया, उन खुदा की लोगों के साथ, उम्मत के साथ, उसकी कौम बनी इसराइल के साथ, जो कि मिस्र में जिनके साथ बदसलूकी होती थी। तो मूसा उनके साथ शरीक हो गया और उसने वो किस लिए कि जैसे हमने 11 बाब में भी पढ़ा है कि उसने अपने आप को लान तान उठाने के साथ साथ उसने मसीह के लिए लान तान उठाने से ज्यादा मिस्र के खजाने जो थे, बड़े खजाने, उनको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा मेरी दौलत, मेरा अजर जो है, क्योंकि उसकी नजरें अजर पाने पे थी, उसने मसीह के लिए दुख उठाना और लान तान उठाना जो है उसको ज्यादा मंजूर किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और उसके बाद लिखा हुआ है 34 आयत में, मैं इब्रानियों 10 बाब उसकी 34 आयत पढ़ रहा हूँ। चुनाचे तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से मंजूर किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। हालेलुया, तुमने सब काम किए, सब काम हम करते हैं, और यानी नेकियों के काम, अच्छे अच्छे काम, कैदियों की मदद और तरह तरह के नेकी के काम, चैरिटी के काम और फलाह के काम हम करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमें मालूम है कि हमारे पास इन सब चीजों से बेहतर एक दायमी मलकियत है। हालेलुया, हमारे पास एक ऐसा खजाना है जो आसमान पर है। हालेलुया, ये सब चीजें जो कुछ हम जमीन पर करते हैं, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे पास एक एटर्नल, एक अब्दी, दायमी एक खजाना है। हालेलुया, एक दायमी खजाना है, मलकियत है, जिसको हम उसके ओनर हैं। हालेलुया, वो हमें जरूर मिलने वाला है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो अजर जिसके लिए मूसा ये सब कुछ लांतर उठा रहा था, हम भी अगर लांतर उठाते हैं, हम भी इस दुनिया में परसिक्यूट भी होते हैं। हम तरह तरह के अपनी नजात पाने के बाद इस बात को जब हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमें हमेशा की जिंदगी का गिफ्ट मिल गया है, तो वो भी एक दायमी मलकियत है हमारी। हालेलुया, और उसके साथ साथ जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए अजर जो जमा हो रहे हैं खुदावन के खजाने में, खुदावन के बैंक में, नई यरूशलेम के बैंक में, वो इन सब खजानों से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिलिपियों 3 बाब में, फिलिपियों 3 बाब उसकी 20 आयत में अगर हम पढ़े तो लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हालेलुया, जमीन पर बहुत से लोग हैं जो अलग अलग अपने अपने तरह तौर तरीके, उनकी सोच अपनी है, सब कुछ है। अगर मैं पिछली आयत पढ़ूं 19वीं आयत तो लिखा है, 18वीं आयत से पढ़ूं तो लिखा है, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। उसके बाद 20वीं आयत में पौलुस कहता है कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा दुनिया में जो लोग रहते हैं, दुनिया के जो लोग रिवॉर्ड, अवार्ड और दौलत और सब कुछ जमा करते हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, सब कुछ है, मगर वो उनका खुदा पेट है, उनका खुदा फेम है, उनका खुदा नाम है, दौलत है, कि कोई उनकी तारीफें करे, कोई वो शो ऑफ भी करें। तो अजीजों, बट पौलुस कहता है कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावन यीशु मसीह, मुनज्जी यानी नजात देने वाले, बचाने वाले, जिसने हमें वो रिवॉर्ड देने, जिसके पास हम खजाने अपने जमा करें, जिसकी खातर हम लान तान उठा रहे हैं, या जिसकी मर्जी के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे खजाने वहां जमा हो रहे हैं,
वो उसके हम इंतजार में हैं कि वो आएगा और वो हमें साथ ले जाएगा। और लिखा, जैसे हम कलाम में भी पढ़ते हैं कि उसने आदमियों को गिफ्ट दिए हैं, वो गिफ्ट देगा, वो खजाने जो वहां पर जमा हो रहे हैं, वो आपके लिए जो गिफ्ट जमा हो रहे हैं, वो आपको जो अजर, आपके जो रिवॉर्ड है वो जमा हो रहे हैं, वो आपको देने की कुदरत रखता है। प्रेज गॉड। और आगे जो 21 आयत में लिखा है, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया। अजीजों, हमारी जो पस्त हाली है वो उसको वो नई शेप देने की कुदरत रखता है। अपने जलाल के बदन की सूरत पर वो बनाएगा उसको। हमारी जो जमीन पर रहते हुए पस्त हाली है, लिखा है वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के माफिक, उसकी जो कुव्वत है, उसकी जो सामर्थ है, उसकी जो पावर है, उसकी जो तासीर है ना, वो हमें ट्रांसफॉर्म करती है। हमें ट्रांसफॉर्म करती है कि जिंदगी में हम जिंदगी और दुनियादारी के कामों को छोड़कर, दुनियादारी की चीजों, लालच और दुनियादारी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, असूल है, उनको छोड़कर हम अब्दी खजानों की तरफ अपना रुख करें और अपनी जिंदगी को बदलें। और उसकी जो कुव्वत की तासीर है वही है जो हमें चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और अगर चौथे बाब की पहली आयत पढ़ें, फिलिपियों चौथे बाब की पहली आयत, तो लिखा है, इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो, खुदावन में इसी तरह कायम रहो। हालेलुया। अजीजों, हमारा जो हम आम जो लोग हैं, उनका रिवॉर्ड ये है कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, बल्कि सबका रिवॉर्ड ये है, सब आपके खजाने वो हैं। और हम जो खुदा के खादिम हैं, पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, मुनाद हैं, जो लोगों को खुदावन के कलाम की खुशखबरी सुनाते हैं और जो खिदमत का काम करते हैं, उनके लिए वो लोग भी अजर हैं, वो लोग भी एक खजाना और उनके लिए ताज हैं, जो खुदा के कलाम पर कायम रहते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं। यानी जैसे पौलुस कहता है कि मैं मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूं, यानी पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा मुश्ताक हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, तुम्हारे बारे में दुआ करता रहता हूं, और मैं यही सोचता रहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी से फायदा उठाओ, मेरी बातों से अपनी जिंदगी को चेंज करो, खुदा को अपना खुदा जानो, खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना नजात दहिंदा जानो, जो मुनज्जी है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जो हमें लेने के लिए आने वाला है, और वो अजर और रिवॉर्ड वो हमें देगा, वो जो खजाना हम आसमान पर जमा कर रहे हैं। तो अजीजों, वो लोग जो खुशखबरी सुनते हैं, वही पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्टों के लिए, मुनादों के लिए, खुदा की खिदमत करने वालों के लिए, वो लोग भी ताज होते हैं, वो लोग भी उनका खजाना होते हैं। हालेलुया। और वो अजीजों, आप हो जो खुदा उनका कलाम इस वक्त सुन रहे हो और उस पर अमल करते हो और खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसकी पाकीज़गी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो, आप सब का खजाना, आप सब मेरा खजाना हो, आप सब उन पास्टर्स का खजाना हो, जहां जिन चर्चेज में आप जाते हो, आमीन, तो आप उनके लिए ताज हो, और जो खुदा की मर्जी पर कायम रहते हो, उसकी खुदावन में इसी तरह जो कायम रहते हो, खुदा उसके कलाम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक, उसकी पाकीज़गी के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक। अजीजों, आइए अपना खजाना आसमान पर जमा करना शुरू, जैसे यीशु मसीह ने कहा है, जहाँ ना चोर चुराएगा, ना कीड़ा खाएगा उसको, ना जंग लगेगा, बल्कि वो खजाना मेरे और आपके लिए मूसा की तरह वो एक अजर है, जिसकी मूसा की नजरें अजर पाने पे थीं, मेरी और आपकी नजरें भी अजर पाने पे होनी चाहिए, जो कि हमारा खजाना आसमान पर जमा है। अगर
वो खजाना हमारा है और वहाँ पर हम एवरी डे डेली बेसिस पर वो खजाना जमा करते हैं, तो हमारा दिल भी वहीं लगा रहेगा, खुदा के साथ लगा रहेगा, उससे दूर नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद, अगर खुदावंद की नज़र में अगर हमारी ऐसी हस्ती, हमारी ऐसी हैसियत है, और अगर हम भटके हुए भी हैं और हम सोचते हैं कि दुनियादारी के खजाने, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोटर गाड़ी, बंगला, ये सब खजाने जो ज़मीन पर हैं, ये हमारा अजर है या ये हमारी ज़िंदगी में कोई काम आएंगे, तो अजीज़ों, इस दुनिया में बेशक अगर खुदावंद ने हमें बरकत दी, हम उन चीज़ों को एंजॉय करें, मगर जो खजाना, असल खजाना आसमान पर जमा करना है, वो उसको जमा करें कि खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदा अगर कहीं होए तो मसीह की खातर लान तान भी उठाना पड़े तो वो लान तान भी उठाएं, और परसिक्यूशन हो तो उसको भी सहें, और दुनिया की दौलतों को रिजेक्ट करके हम खुदावन की दौलत को जो आसमान पर है उसी को हासिल करें और उसी को बढ़ाएं, उसी को जमा कराएं, और उसी में ताकि हम उस दिन का जब हम इंतज़ार करते हैं कि यीशु आए, हमें ले जाए साथ, और उन खजानों को फिर इंजॉय करने की, हम फिर एटर्निटी जो अब्दियत है उसमें उन खजानों को इंजॉय करें, अपने अजर को इंजॉय करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुम्हारा खुदा हमारे साथ है, हमारा मालिक हमारे साथ है, हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला हमारे साथ है। खुदावन हम तेरे मुंतज़िर हैं, खुदावन हम तेरे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तू आए और हमें ले जाए। खुदावन अगर कोई तू देखता है कि हमारे अंदर कोई बुरी रविश है तो उसको निकाल और उसको दूर कर, हमें छांट और काट और छांट खुदावंदा, और अपने खत्ते में जमा कर खुदावन, ताकि हम भी खुदावन ज़मीन पर अपना माल जमा ना करें। खुदावन जहाँ कीड़ा खाता है, जहाँ जंग लगता है, जहाँ चोर उसको चुरा ले, खुदावन यीशु हम आसमान पर अपना माल जमा करें, ताकि हमारा दिल भी आसमान पर लगा रहे, आसमानी बरकतों पर, उस अजर पाने पर लगा रहे जो तेरी तरफ से है। वो अजर जो तूने देना है हमें, वो अजर जो हमें मिलना है तेरी तरफ से। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और पाक रूह की मिन्नत करते हैं कि हमारी मदद करे कि हमें किस तरीके से उस खजाने को हम जमा करें और उसको बढ़ाएं, और ज़मीन पर के तमाम तर खजानों को हम नाचीज़ जानें। खुदा ज़मीन, जैसे पौलुस कहता है खुदावन यीशु कि मैं ज़मीन की सब चीज़ों को मसीही की पहचान को पा लेने से के बजाय मैं ज़मीन की सब चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ। अजीज़ों, हम भी सब कूड़ा समझे और खुदावंद से इस वक्त मदद मांगे कि खुदावंद तू हमारी मदद कर और हमें उस कीमती खजाने की पहचान दे, और उस बादशाही की पहचान दे कि हमारी तेरी बादशाही हमारी ज़िंदगी में हो, जैसा कि तेरे कलाम में खुदावंद तूने वो तमसील दी है कि आसमान की बादशाही एक छिपे हुए ऐसे खजाने की मानिद है जो किसी खेत में छिपा हुआ था, और एक किसी ने वो पाकर उसको अपना पूरा सब कुछ बेच दिया और वो खेत खरीद लिया खजाने समेत, और वो खजाना उसको मिल गया। खुदावंद हम दुआ करते हैं, मैं तेरा खुदावंद खादम होते हुए अपने लिए, अपने घराने के लिए, बच्चों के लिए और अपने तमाम तर इन अजीज़ों के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको तेरी ये बादशाही मिल जाए। खुदावंद उस बादशाही में जो खजाना है वो मिल जाए, ताकि खुदावंद उस खजाने को वो इसी तौर पर अपना सब कुछ देकर उस खजाने को ले ले, उस माल को ले ले जो तेरे आसमानी बादशाही में है, उसको वहां जमा रहने दे कि खुदावंद उसको हम एटर्निटी में एंजॉय कर सके। हालेलुया, अपने रिवॉर्ड के तौर पर, अपने उस अजर के तौर पर जो सबको तू अपने खुदावंद साथ तेरी मर्जी में चलने वालों के लिए, तुझसे मोहब्बत करने वालों के लिए तूने वो अजर जो हमारे लिए रख छोड़ा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ। और इस वक्त आज जो कोई बीमार है उसके लिए दुआ करते हैं कि तू शिफा देना खुदावंद यीशु के नाम में। और जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं तू जानता है खुदावंद, तो नाम बनाम सब प्रेयर रिक्वेस्टों को तेरे पास लेकर आते हैं। कोई बीमार है, कोई खुदावंद यीशु कोई कमज़ोर है, कोई बेरोज़गार है, किसी को खुदावंद यीशु
खिदमत के काम के लिए तेरी मदद की ज़रूरत है खुदावंदा, फाइनेंसिस की ज़रूरत है और तरह तरह के खुदावंदा जो भी कोई खुदावंदा जो चर्चेस की यूथ है उनके लिए बहुत सी ज़रूरतें हैं खुदावंद। किसी को कंप्यूटर लेने हैं खुदावंद, चर्चेस में खुदावंद हम दुआ करते हैं। जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि खुदावंद यीशु जो पाकिस्तान से कि जिस चर्च में खुदावंद जो चर्च जो है कलीसिया जो है खुदावंदा लोगों के लिए ये अजर अपना खजाना आसमान पर जमा करना चाहती है ताकि खुदावंद कलीसिया के बच्चों को, जवान बच्चों को खुदावंदा कंप्यूटर्स की तालीम दी जा सके ताकि वो अपने लिए काम कर सके, अपने घराने के लिए भी और तेरी बादशाही के लिए भी। और खुदावंद यीशु वो कलीसिया खुदावंद अपने लिए वो खजाना आसमान पर जमा करती है खुदावंद। इस तरीके से लोगों की मदद करके, जवान बच्चों की मदद करके, तो खुदावंद हम दुआ करते कि तेरा आसमान उनके लिए खुले, ज़मीन पर रहते हुए भी खुदावंद तेरा हाथ उनके लिए बढ़े और खुदावंद वो इस काम को कर सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खजाना भी आसमान पर जमा कर सके, अपना माल आसमान पर जमा कर सके वो कलीसिया और खुदावंद के खादम भी। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। तमाम जो लोग इस वक्त किसी भी वजह से परेशान हैं, दुख हैं, परसिक्यूशन में हैं, तेरे नाम की खातिर लान तान उठा रहे हैं खुदावंद, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि तू सलामती बख्शना, खुशी बख्शना और खुदावंदा अपने खुदावंद कुव्वत की तासीर से खुदावंद उन सब को संभालना और खुदावंद प्रोटेक्ट करना। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। अज़ीज़ो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की हम दो आप सब के लिए जो इस इबादत में शामिल थे। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे और आज जो कुछ हमने सीखा है उसी तौर पर हम कोशिश करें कि अपना ख़जाना आसमान पर जमा करें। जो चंद एक बातें सीखी हैं और इसके अलावा बहुत सी और बातें हैं जो कि एक ख़जाना हमारे लिए बन सकती हैं आसमान पर। गाहे बगाए हम सीखते रहते हैं और बुध के दिन भी, और ये क्योंकि जो मीटिंग है फेसबुक और यूट्यूब पर भी ऑलवेज रहती है। आप मिरेकल वेडनेसडे के नाम से इसको आप ढूंढ सकते हैं, हमारी फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। और इन सब बातों को सुने, हमारे साथ वर्शिप भी करें। खुदावंद आपको बरकत देगा और उम्मीद है कि आज भी मेरा मान है कि उसने बरकत दी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।